हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल का चैप्टर नंबर फर्स्ट, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एट द आवर ऑफ मिडनाइट 14-15 अगस्त 1947 इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस। जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, एड्रेस a special session of the Constituent Assembly. That night he gave the famous speech, Tryst with Destiny. Two goals almost everyone agreed upon him. After independence, we shall run our country through democratic government, and the government will be run for the goods of all, particularly the poor and the socially disadvantaged group. India faces three types of challenges. पहला था to shape a nation, second था to establish democracy, and third था economic development लाना and eradication of poverty. पहला है to shape a nation. India was a land of continental size and diversity, and people spoke different languages, followed different cultures and traditions. Second है to establish democracy on the basis of universal adult franchise and the parliamentary form of government. उम्मीद है आपको समझ में यह इतना आ चुका होगा। अब बात करते हैं पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड द रिहेबिटेशंस। ऑन 14-15 अगस्त 1947 नॉट वन बट टू nations come into existence, India and the Pakistan, according to two nation theory passed by the Muslim League. In this theory, Muslim League said that there are two types of people found in India, Hindus and Muslim League demanded a new nation named Pakistan, and the Congress opposed this theory and the demands of Pakistan. But the several political development in 1940 and the political competition between the Congress and the Muslim League and the British rule led to the decision for the creation of Pakistan. Process of partition, जो partition था इंडियन पाकिस्तान का, वो रिलीजियस मेजोरिटी के बेस पे हुआ था। मतलब जहाँ पे ऐसा एरिया जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी के अंदर होंगे वो एरिया पाकिस्तान के अंदर आएगा। फॉर एग्जांपल अपने समझते हैं, यहाँ पे दो एरियाज़ थे जहाँ पे मुस्लिम क्या है मेजोरिटी के अंदर थे। जब दो एरियाज़ को डिक्लेयर कर दिया गया, एक था ईस्ट पाकिस्तान और एक था वेस्ट पाकिस्तान। अब अपने आगे पढ़ते हैं, आगे अपने डिस्कस करते हैं। देयर वॉज नॉट वन टू belt of Muslim majority area of British India. There were two areas, one of the east and the one of the west, and no one way these two parts could be joined. So it was decided that the new country Pakistan was separated by the long expanse of Indian territory. Second, not all Muslim majority area wanted to be Pakistan. Khan Abdul Ghaffar Khan, the leader of NWFP, Northwestern Frontier Province, it is also known as Frontier Gandhi. He opposed two nation theory and the demands of Pakistan, but his voice was simply ignored and the NWFP was made to merge with Pakistan. Third, Punjab and the Bengal were the two areas where Muslim and the non-Muslim also will live. So it was decided that these two provinces would be bifurcated according to the religious majorities at the district and even lower level. This decision could not be made by the midnight 14-15 अगस्त 1947. अब बात करते हैं पंजाब एंड द बंगाल की। पंजाब एंड बंगाल ऐसे दो एरियाज थे जहाँ पे मुस्लिम एंड द नॉन मुस्लिम दोनों रहा करते थे। पंजाब का एरिया यहाँ था एंड जो बंगाल का एरिया था वो यहाँ पे भी क्या है, छोटे लेवल पर क्या है पार्टीशन हुआ एंड आधा पार्ट पाकिस्तान को दिया गया और आधा क्या हिंदू को दिया गया, यानी इंडिया को दिया गया। इस तरह से हमारा जो बांग्लादेश है उसको वेस्ट बंगाल कहा जाता है। ड्यू टू ईस्ट जो बंगाल है वो कहाँ है, वो अब बांग्लादेश के अंडर है, जो 1971 के बाद बांग्लादेश बन गया, पहले ये ईस्ट पाकिस्तान था। अब बात करते हैं फोर्थ प्रॉब्लम की। फोर्थ प्रॉब्लम वॉज माइनॉरिटी इन द बोथ साइड ऑफ border felt their homes and often secured in temporary shelters in the refugee camps. जो पीपल एंड जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो ये सोच रहे थे कि ये जो वायलेंस है ये टेम्परेरी है, यानी कुछ समय का है और कुछ समय बाद ये क्या कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन ये वायलेंस क्या आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। अब क्या है कॉन्सिक्वेंसेस, यानी क्या परिणाम निकले हमारे पार्टीशन के, जो विभाजन हुआ हमारा इंडिया और पाकिस्तान का। पहला था कि जो पार्टीशन था ये अनप्लान था, किलिंग एंड एट्रोसिटीज़ हुई, अत्याचार हुए दोनों साइड की तरफ, इंडियन पाकिस्तान दोनों तरफ हुआ। दूसरा क्या है, एक कम्युनिटी के लोगों ने दूसरी कम्युनिटी के लोगों को खूब मारा पीटा। सिटीज़ लाइक लाहौर, अमृतसर एंड कोलकाता उनको कम्युनल जोन्स घोषित कर दिया गया।
Minority in both sides of border felt their homes and often secured in temporary shelter in refugee camps. लोगों को refugee camps में रहना पड़ा. Thousands of women से उन्होंने अपने घर को त्यागा एंड उनको बच्चे क्या अपने माँ से क्या बिछड़ गए, अपने पेरेंट्स से क्या बिछड़ गए थे. जो राइटर्स थे, फिल्म मेकर थे, उन्होंने इस पूरे जो हत्या, जो ये पार्टीशन हुआ, जितनी जो वायलेंस हुआ, इसको अपने नॉवेल्स के अंदर, शॉर्ट स्टोरीज के अंदर एंड पोएम्स एंड फिल्म्स के अंदर इन्होंने लिखा है, बताया है. 80 लाख जो पीपल थे वो माइग्रेट हुए एंड 12% जो मुस्लिम थे 1951 के अंदर वो रह चुके हैं और 5 से 10 लाख जो पीपल हैं वो मर गए थे. अब एक ये क्वेश्चन खड़ा हुआ कि गवर्नमेंट क्या है इनके साथ कैसा ट्रीट करेगी. तो गवर्नमेंट ने क्या है ये कहा कि हम किसी भी रिलीजन को ऊंचा नहीं मानेंगे, हम सभी रिलीजन की रिस्पेक्ट करेंगे और हम इंडिया को एक सेकुलर नेशन मानेंगे. इस तरह से हमारे प्रियम्बल के अंदर भी क्या है सेकुलर वर्ड देखने को मिलता है एंड इंडियन लोगों ने इससे क्या है डिवीज़न ऑफ हर्ट की भी संज्ञा दी है. अब हम बात करते हैं महात्मा गांधी के सेक्रीफाइस के बारे में. महात्मा गांधी के सेक्रीफाइस के बारे में हम अब बात करते हैं. 15 अगस्त 1947 में जो महात्मा गांधी थे उन्होंने किसी भी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के अंदर भाग नहीं लिया था. वो उस समय कोलकाता के अंदर थे और कोलकाता में वहाँ पे उनके होने से वहाँ की जो कंडीशन थी वो सिचुएशन है वो काफ़ी इम्प्रूव हो रही थी. हिंदूज़ एंड मुस्लिम ने क्या है जो वायलेंस करना कम कर दिया गया था. अगले महीने गांधी जी का है दिल्ली चले गए जहाँ पे भी लार्ज स्केल के अंदर क्या वायलेंस हो रहा था एंड उन्होंने क्या है वहाँ पे फास्ट रखा था जनवरी 1948 के अंदर. और फास्ट रखने के बाद हिंदू और मुस्लिम ने क्या वायलेंस करना कम कर दिया और मैनी पीपल काफ़ी लोग ये कह रहे थे गांधी जी का इंटरेस्ट है वो मुस्लिम के अंदर है और वो लेकिन पाकिस्तान और मुस्लिम के अंदर गांधी जी का इंटरेस्ट है. लेकिन गांधी जी बोलते हैं कि जो मुस्लिम लोग हैं वो मिसगाइडेड हैं, उन्हें इतना नहीं पता है. फाइनली 13 अगस्त 1948 में नथुराम विनायक गोडसे ने 3 जो बुलेट्स थी वो बुलेट्स इवनिंग प्रेयर के दौरान क्या है गांधी जी को मार दी एंड गांधी जी की वहाँ पे सडनली डेथ हो गई. डेथ होने के बाद एक ऑलमोस्ट मैजिकल इफेक्ट हुआ. जो वायलेंस था वो एक सडनली सस्पेंड हो गया, शांत हो गया. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ था उस समय वो बैन कर दिया गया कुछ समय के लिए. अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट की. ब्रिटिश इंडिया था वो टू डिवाइडेड था, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस के अंदर एंड प्रिंसली स्टेट्स के अंदर. ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस में वहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे वो डायरेक्टली कंट्रोल करते थे. प्रिंसली स्टेट्स के अंदर पैरामाउंट एसी और ब्रिटिश क्राउन थी जहाँ पे जो इंटरनल अफेयर थे यानी राज्य के अंदर के मामले थे वो प्रिंस हैंडल करता था, लेकिन राज्य के बाहर के मामले थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट हैंडल करती थी. प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई कि पार्टीशन से जस्ट पहले जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये कह दिया कि हमारा जो रूल है वो इंडिया से अब ख़त्म हो रहा है, पैरामाउंट एशियो ब्रिटिश क्राउन है वो भी लैप्स हो रही है. उस समय 565 प्रिंसली स्टेट्स क्या हुआ करते थे और ब्रिटिशर्स ने बोला कि आपके पास आप फ्री हो, आप आज़ाद हो, आप ज्वाइन कर सकते हो, आप कौन सा भी कहीं पे भी रह सकते हो. आप इंडिया में रहना चाहो इंडिया में रह सकते हो, पाकिस्तान में जाना चाहो पाकिस्तान में जा सकते हो, आप एक इंडिपेंडेंट नेशन भी बना सकते हो. उस समय जो त्रावणकोर के जो राजा थे उन्होंने कहा कि हम इंडिपेंडेंट होंगे. निज़ाम थे हैदराबाद के, उन्होंने भी सेम अनाउंस किया. नवाब ऑफ भोपाल ने ये कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पार्ट नहीं लेंगे. उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जो डेप्यूटी पीएम थे, होम मिनिस्टर थे, उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. उन्होंने 565 प्रिंसली स्टेट का इंडियन यूनियन के अंदर मर्ज किया. उस समय 26 जो स्टेट्स थे वो उड़ीसा के अंदर थे. सौराष्ट्र रीजन था गुजरात का जहाँ पे 14 बिग स्टेट्स एंड 119 स्मॉल स्टेट्स थे. गवर्नमेंट ने कुछ बातें रखी. गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम क्या कुछ आपको ऑटोनॉमी फ्लेक्सिबल ऑटोनॉमी देंगे. जो काफ़ी सारे प्रिंसली स्टेट के जो पीपल थे वो ये चाहते थे कि हम क्या इंडियन यूनियन में मर्ज होना चाहते हैं, लेकिन वहाँ के जो रूलर्स थे वो चाहते थे कि हम क्या है हम हमारा एक सेपरेट नेशन बनाए. जो रूलर था मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स के उन्होंने साइन किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पे. इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन का मतलब होता है कि वो फ्री है कहीं पे भी वो इंडियन यूनियन के अंदर मर्ज होने के लिए क्या है फ्री है.
और वो इंडियन यूनियन में मर्ज होने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन पे क्या है साइन करवाया गया इनसे। अब बात करते हैं जूनागढ़ की। जूनागढ़ का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो प्लेबिसाइड से सॉल्व किया गया। प्लेबिसाइड का मतलब होता है कि वहाँ के जो लोकल जो लोग थे वो चाहते थे कि हम इंडिया के साथ मर्ज हो, और उन्होंने क्या है वहाँ पे वोटिंग थ्रू के अकॉर्डिंग जूनागढ़ को क्या है इंडिया के अंदर मर्ज करा लिया। अब बात करते हैं हैदराबाद। हैदराबाद एक लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था। हैदराबाद अब महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश इन सब राज्यों से मिलकर बना हुआ था। उस समय वहाँ का जो रूलर था उसको निज़ाम कहा जाता था। वो वन ऑफ द वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन था। निज़ाम चाहता था कि वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाए। एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया नवंबर 1947 के अंदर। पीपल थे हैदराबाद के, वो चाहते थे कि निज़ाम के रूल से वो फ्री हो जाएं। फार्मर थे तेलंगाना में, उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया अगेंस्ट निज़ाम रूल के। वुमेंस ने भी इस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया। निज़ाम ने अपनी पैरामिलिट्री फोर्स जिसे रजाकर्स कहा जाता था उनको भेजा। उन्होंने काफ़ी लोगों को मारा, मर्डर हुए, रेप्ड हुए, उनको लूटा गया। ऑपरेशन पोलो हुआ था। सितंबर 1948 के इंडियन आर्मी ने क्या कंट्रोल कर लिया निज़ाम की फ़ोर्स पे, एंड आफ्टर सम टाइम्स क्या निज़ाम को सरेंडर करना पड़ा, और इस तरह क्या है हैदराबाद का इंडियन यूनियन के अंदर क्या है मर्जर हुआ। अब बात करते हैं मणिपुर की। इंडिपेंडेंस से कुछ दिन पहले ही क्या है जो महाराजा थे मणिपुर के, राजा बोध्या चंद्र, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पे साइन कर दिया, लेकिन कंप्लीट मर्जर एग्रीमेंट पे साइन नहीं किया था। इस समय जो मणिपुर था वो एक पार्ट बन गया था इंडिया का, लेकिन वो क्या है एक स्टेट नहीं बना था इंडिया की। अंडर द प्रेशर पब्लिक ओपिनियन के महाराजा ने इलेक्शन हेल्ड किए जून 1948 के अंदर, और स्टेट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दिया। ये फर्स्ट इलेक्शन था जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे हुआ था। गवर्नमेंट ने प्रेशराइज किया महाराजा को कि वो मर्जर एग्रीमेंट पे साइन कर दे सितंबर 1949। इस तरह जो मणिपुर के जो राजा थे, राजा बोध्या चंद्र, उन्होंने प्रेशर में आके मर्जर एग्रीमेंट पे साइन किया। उन्होंने वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उससे भी बातचीत नहीं की थी, बिना बातचीत की उन्होंने साइन कर दिया, जिस वजह से आज तक उनका जो गुस्सा है वो देखने को मिलता है। अब है हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक आ जाता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कमीशन, यानी जिसे बोलते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट है वो लैंग्वेज और कल्चर के बेस पे किया गया था। मेनली लैंग्वेज को ही प्रेफरेंस दी गई थी। जो विशालांध्र मूवमेंट पहले हुआ, जो तेलुगु स्पीकिंग एरिया के लोग थे ओल्ड मद्रास प्रोविंस के, ठीक है, जो मद्रास था उस समय तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला से मिलकर बना था। विशालांध्र मूवमेंट हुआ जो चाहते थे कि जो तेलुगु स्पीकिंग एरिया के स्पीकिंग जो लोग हैं उनके लिए सेपरेट क्या है प्रोविंस बना दी जाए, सेपरेट बना दिया जाए, आंध्र प्रदेश बना दिया जाए मद्रास से अलग करके। उस समय क्या है जो पोटी श्रीरामुलु जी थे, जो कांग्रेस लीडर थे, और ब्रिटियन गांधी थे, उन्होंने विशालांध्र मूवमेंट को लीड किया और उन्होंने फास्ट रखा 56 डेज तक, और सडनली उसके बाद उनकी डेथ हो गई, जिस कारण से वॉयलेंस स्टार्ट हो गया आंध्र प्रदेश के अंदर। एंड फाइनली क्या है पीएम ने अनाउंस कर दिया कि जो आंध्र प्रदेश है वो सेपरेट हो गया है मद्रास से दिसंबर 1952 के अंदर। आंध्र प्रदेश के फॉर्मेशन के बाद जो अदर स्टेट्स थे वो भी डिमांड कर रहे थे अपना सेपरेट नेशन। देन सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया 1953 के अंदर। इसकी जो रिपोर्ट है वो 1955 के अंदर आई, एंड 1956 के अंदर क्या है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने क्या है 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज का गठन किया, उसका फॉर्मेशन किया। ये जो स्टेट बने थे ये लैंग्वेज और कल्चर के बेस पे बने थे। 1960 में क्या महाराष्ट्र और गुजरात बने बॉम्बे से अलग होकर। 1963 में नागालैंड बना असम से अलग होकर। 1966 में हरियाणा बना था, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बने पंजाब से अलग होकर। 1972 में मेघालय बना असम से अलग होकर। 1987 में मिजोरम अरुणाचल प्रदेश बने असम से अलग होकर। 2000 के अंदर
छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उत्तराखंड बने। 2014 में तेलंगाना बना, आंध्र प्रदेश से अलग हो। अब हम बात करते हैं फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी क्या है, पेपर्स के अंदर अपने क्वार्टरली एग्ज़ाम, हाफ ईयरली के अंदर, फिर बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। पहले बात करते हैं फैज़ अहमद फैज़ की, जिनका जन्म सियालकोट के अंदर हुआ था। पार्टीशन के बाद ये पाकिस्तान चले गए थे। इन्होंने पाकिस्तानी रिज़ाइम का विरोध किया और कुछ समय तक इनको जेल भी हुई। इन्होंने नक्श फरियादी, दस्ते सबा और जिंदनामा का गठन, पोइट्री का कलेक्शन किया। अमृता देवी जो पंजाबी पोइट थी और फिक्शन राइटर थी, जिन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड, पद्मश्री और जननपीठ अवार्ड जीता, वो नागमणि जो एक पंजाबी मंथली मैगज़ीन थी, उनकी एडिटिंग और उसकी राइटिंग करती थी। पोटी श्री रामुलु जिन्होंने विचारांध्र मूवमेंट के अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, और इनकी ही मृत्यु के बाद क्या है, आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो फ्रीडम फाइटर थे, कांग्रेस लीडर थे, डेप्यूटी पीएम थे, होम मिनिस्टर थे, जिन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स के लिए। इन्होंने मेंबर थे इम्पोर्टेंट कमेटी के ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के ऑन द फंडामेंटल राइट्स। तो गाइस, आपका चैप्टर है ये ख़त्म हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।